Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am here again with a new session of data handling. Right, so I hope you all have watched the previous session in which we have discussed a little bit about what is data, how to handle, how to collect, how to organize. Okay, so here I'm back with the session in continuation of that only. And today we will be learning all about pictograph and the bar graph. Okay, I will be telling you what is all these things. But before that, let me tell you about Swift Learn. Yes, so as I can see, it is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10th. And I can say that the one and only destination providing you concept-based learning. Okay, so we are providing 100% live and interactive classes, live, face-to-face, interactive within the class. You can ask your doubts, your queries, and all. Personalized attention batch with maximum 6 students. In our batch, we don't take more than 6 students, and as per your convenience, you can take a batch of 1:1 and 1:2. No issues for that. After that, a dedicated academic mentor team is there, which is whole soul working on your progress. It means that if you are lacking somewhere, okay, so the team will be targeting you there only. Syllabus, CBSE, ICSE, state boards, all the syllabus are covered here. Detailed progress report. Yes, whatever you will be doing in your class, I mean, in the form of homeworks, in the form of assessments, in the form of monthly tests, we will be providing you a detailed report for that, so that you also will be able to know about your drawbacks, your lackings, so that you can also work on that. After that, you can here take unlimited practice test along with the subjective test. So when I'm taking it's unlimited, it's really mean it's unlimited. What happens, abhi aapne chapter pad liya, you have done with the concept, but the thing arises where to practice, how to practice, where to practice and how to practice. Yeah, so the both questions will be answered in the Swift Learn only. Where on the Swift Learn, how we will be providing you the practice test. You have to just click, and after that lots of practice tests will be there according to the chapter wise or according to the concept wise. Okay, after that Swift and academic test series, we have SATs. So very simple, as I told you, SATs means if you are a part of Swift Learn, then by doing this particular test series in a single go, you will be competing. Just give me 1 minute, I think something. Okay, yeah, so what I was saying, that in a single go you can compete with the other student of your grade only. It means that suppose I'm in 5th grade or I'm in 6th grade, and I can compete with all the students which are in 5th grade or 6th grade in the Swift Learn. So I think this is the most important thing. Okay, now let's talk about the thing. Those who are new to the channel, kindly subscribe it. Press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button. Hit it. Okay, and yes, comment your queries, your suggestions are always welcome. Share to your friends, to your classmates, so that they will also learn about the new things. They also get to know about the Swift Learn YouTube channel. Okay, so let's start our very important topic, that is called data handling. It is a very important and very scoring chapter actually. I don't think इस चैप्टर में किसी का भी कोई क्वेश्चन गलत होता है. अगर गलत होता भी है तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. ओके, सो द डेटा हैंडलिंग इज coming. Okay, so then let's start. So today we are going to do all about pictographs and bar graphs. What we have done in the last class, we have done about the telemark, how to represent data, how to organize it so that it will be easy for me to analyze and to interpret, right? So suppose if day and the number of Monday 4 students were absent, Tuesday 5 students were absent, Wednesday 6 students were absent. So if I want to represent this data with the help of a telemark, I will be doing, as I already told you in the last class. जिन्होंने last class नहीं देखी है, you can go and watch that, because उसमें मैंने आपको telemark बहुत basically बताया है. ठीक है, बहुत simple है. 5 का ग्रुप्स बनाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 थे, तो 4 से ज़्यादा नहीं आएगा. So मैंने किया 1 2 3 4. यहाँ पे था 5, so I did 1 2 3 4 5. Now यहाँ पे था 6, so I did 1 2 3 4 5. I got a 5. Now one more start. Now I will start again, that is
6. Okay, so it just you have to remember the table of 5, nothing else. Okay, so now let's move to our next topic, that is called representation of data using the pictographs. Okay, now what is pictograph actually? नाम ही बता रहा है पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स का ग्राफ. अगर मैं डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि उस पर मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, then it is called to be the pictograph. Always it is very easy whenever you will try to relate each and everything with the name. Always जब भी आप कुछ नया पढ़ते हैं ना, तो जो भी उसकी डेफिनेशन होती है उसको उसके नाम से, क्योंकि नाम में ही काम है. आई ऑलवेज से दिस इन माई क्लास, द मोमेंट यू विल बी, आप उस नाम को देखेंगे ना, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा. ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक्टो आ रहा है, पिक्टो. सो पिक्टो मीन्स पिक्चर्स. सो पिक्चर्स का जो ग्राफ होता है उसी को हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं. राइट, सो पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ शोइंग डेटा यूजिंग पिक्चर्स एंड सिंबल्स. Each image stand for a certain number of things. Let's see what is they saying. Each image. Now they are saying each image stand for a certain number of things. Now let's see what are they saying about this exam. Suppose let's take the step by step how we can make a pictograph. The very first thing, you have to pick any appropriate symbol for data you are showing. Any appropriate symbol. Now let me tell you why we are picking up. The very simple thing, as I told you, this is all about pictures. So how with the help of the pictures I can represent a data? So I have to take a picture, right? I have to take a picture. So I have to pick one picture. You can take any picture. You can take smiley, you can say star, you can take triangles, you can take squares. But for single question you have to take only one single picture. It's not like that आप बहुत सारे symbols लेके पूरा कुछ बना रहे, नहीं. आप एक symbol लीजिए, whole questions को आपको एक ही symbol से करना है. After that, assign a key. Now it is very important to understand that what is key actually. Okay, suppose let's take a very simple example, like in the class first 50 students are there, in the class second 60 students are there, in the class third 70 students are there. Okay, not 70 is not possible. Let's take 35 students are there, and in class fourth how many students are there? Let's say 45 students are there. Okay, got this or not? Now I want to represent this information with the help of the pictographs. Now what will be the thing? The thing will be like that कि अगर मैं 50 पिक्चर्स बनाऊंगी तो भाई बहुत सारा टाइम लग जाएगा. Don't you think so? If I will make 50 pictures, तो फिर फायदा क्या हुआ पिक्टोग्राफ बनाने का? इतनी मेहनत करनी पड़ रही है. 50 पिक्चर्स मैं इसके लिए बनाऊं, 60 पिक्चर्स मैं सेकेंड क्लास के लिए बनाऊं, थर्ड क्लास के लिए भी मैं 35 पिक्चर्स बनाऊं. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक सो मेनी पिक्चर्स. टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और फायदा भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो डेटा रिप्रेजेंट करना है, राइट. तो डेटा रिप्रेजेंट करने को इतना टाइम तो हम नहीं लगाएंगे ना. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से एक ऐसा सिंबल ले लेंगे, एक ऐसी की ले लेंगे जिसमें ये सब आते हैं. अब आप देख के बता सकते हैं कि these all are multiples of 5. These all are multiples of 5. Yes, 5 की टेबल में 45 भी आता है, 5 की टेबल में 35 भी आता है, 5 की टेबल में 60 भी आता है और 5 की टेबल में 50 भी आता है. Yes, 5 10s are 50, 5 12s are 60, 5 7s are 35, 5 9s are 45. तो देखो ऑटोमेटिकली डेटा कम हो गया ना, 10 12 7 और 9 आ गया. Now what can I do? मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में बता देती हूँ. सो दैट नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली मेक दिस पिक्टोग्राफ. और यहाँ पे मैंने की क्या ले ली, लेट मी टेल यू मैंने की क्या ली है. ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास, सो सॉरी, यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास. ठीक है, लेट मी राइट, यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास और यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपने बोला यहाँ पे वन सिंबल ले लो, स्माइली. तो आपने बोला वन स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. वन स्माइली इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. नाउ इफ आई वांट टू शो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास फर्स्ट, सो क्लास फर्स्ट में वन स्माइली का मतलब है 5 स्टूडेंट्स. तो 10 स्माइलीज का मतलब कितना होगा, 50 स्टूडेंट्स. 10 5s are 50.
ओके, सो दिस यू हैव टू डू। आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो सबकी टेबल में आता है, जो मतलब जिसकी टेबल में ये सारे नंबर्स आते हो। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 10 स्माइली बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10, जब 1 का मतलब 5 था तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 45 35 40 45 50 बन गया। सिमिलरली क्लास सेकेंड में 60 थे, तो 60 के लिए मुझे कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेंगी? 12। तो ये उससे तो बेटर है ना कि मुझे 50 और 60 बनाना पड़ता, उससे बेटर है कि मैं 10 और 12 बनाऊं, right? So this is how is the use of key. So with the help of keys हम अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टेप 2 समझ में आया, की लेनी है। ठीक है, की के बाद पिक्चर्स बना के रिप्रेजेंट कर देना है डेटा को। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, नाउ playing number of students, this was a survey of 120 students. So it was like that कि कितने students को कौन सी एक्टिविटी मतलब कौन सी एक्टिविटी प्रेफर करते हैं। How many students like to play, how many students like to read storybooks, how many of them like to watch TV. So these are the different activities and these are the number of students. Again, it is not possible for me to draw 30 drawings. So I will choose a key. So very first thing, what I have to take a symbol. Let's take a symbol of star. आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, इट्स योर विश। नाउ आई हैव टू चूज अ की। की क्यों? क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10 तक है, 30 भी है, 20 भी है। सो आई हैव टू चूज इट। तो आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 10 और 5 में ही स्केल लेना है। अभी आप हायर क्लासेस में नहीं है तो आपका 5 और 10 के स्केल से चल जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे 25 भी है और यहाँ पे 5 भी है, तो मैं 5 का स्केल ले सकती हूँ क्योंकि सारे नंबर्स 5 के टेबल में आ रहे हैं। दे ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 5 4 are 20. I can write it 5 6 are 30, 5 5 are 25. Sorry. It is 5 4 are 20. Now 5 5 are 25. Now 5 2 are 10 and now 5 1 are 5. मिल गया की? तो हमने की को क्या चूज कर लिया? 5। तो इट मीन्स दैट इसके लिए मुझे 6 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए 4 सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए 5, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, या बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली, वी हैव टू टेक दैट नंबर एज अ की विच शुड बी डिविजिबल बाय ऑल द टर्म्स। अब डिविजिबल बाय पता है, डिविजल का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसकी टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं वो आप ले सकते हैं। अब मैं 10 भी तो ले सकती थी, बट 10 की टेबल में 30 आता है, 20 आता है, 10 आता है, बट 25 और 5 के लिए फिर मुझे हाफ हाफ करना पड़ता। सो अभी हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम 5 ले सकते हैं। वैसे भी आप तो छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को तो ड्राइंग करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो चलिए इसी के आगे मैं आपको पिक्टोग्राफ बना के दिखा देती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, ये देखिए लाइन, ये मैंने लाइन, अभी आप बोलिएगा मत कि मैम योर लाइन इज नॉट स्ट्रेट, बिकॉज आई एम डूइंग दैट इन कंप्यूटर or my lappy. Okay, now this is the pictograph. ये number of pictures, यहाँ पे number of students. तो देखिए 30 के लिए how many stars I have to make? How many stars I have to? 6. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30. Now let's make one more. 4. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. Now let's do one more. 25. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. Easy. 10. So for the 10, I will be making only 2. 5 1s are 5, 5 2s are 10, and for the 5, I will be making only 1. So this is my pictograph. अब आप ये नहीं करना है कि इसके लिए आपने स्टार ले लिया, इसके लिए स्माइली ले लिया, इसके लिए ट्राइंगल ले लिया। नो, you have to take only one symbol for all the data.
ओके, सो नाउ इजीली, अब अगर मुझे नंबर्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे मैं देख के इजीली बता सकती हूँ, कोई भी बता सकता है कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या एक्टिविटी प्रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली पहली वाली, क्योंकि पहली वाली में बहुत सारे स्टार्स हैं। सबसे कम क्या करते हैं, पेंटिंग, क्योंकि सबसे लास्ट वाले में सबसे कम। Okay, so I hope this is clear. So very simple, what we have to do, first choose the symbol, then choose a key. So always remember, symbol and key is very important. Okay, I hope it is clear. तो चलिए, यहाँ पे स्माइलीज बनाए थे, that's not problem, इन्होंने स्माइलीज बनाए थे, and what is the key, and you have to mention that key either above the table or either below the table. You have to mention it, otherwise इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आपने की नहीं लिखा तो भाई कैसे पता चलेगा कि ये स्माइली का मतलब क्या है। यहाँ पे बोलेंगे भैया तो 30 है, स्माइली में तो 1 2 3 4 5 6 स्माइलीज है। हाउ वुड आई कम टू नो दैट कि वन सिंगल स्माइली का मतलब 5 स्टूडेंट्स है। तो इन ऑर्डर टू, क्योंकि हम डेटा क्या कर रहे हैं, हम डेटा दूसरों को प्रेजेंट करेंगे ना, तो अपने लिए तो बना नहीं रहे हैं ना, प्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। तो डेटा को प्रेजेंट करने से पहले आप उसकी की को लिखेंगे, तभी तो भाई सामने वाले को पता चलेगा। यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द की ऑल्सो। ऑलवेज रिमेंबर टू, जो भी आपने सिंबल लिया है, जो भी आपने की ली है, उसको जरूर आप मेंशन करिए, इधर अबव द टेबल, इधर बिलो द टेबल, and most of the time it is written below the table. Let's take one more examples. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the number of books sold by a shopkeeper. So that was 75, 45, 90, 30, and 60. So again we have to draw a pictograph, right? So in order to draw a pictograph, again I have to choose a symbol, or again I have to take a key. So for the symbol, you can take a triangle. And for the symbol, I would suggest you, because again it is a 5 5, so you have to choose, आप 5 ही कर सकते हैं, या आप 15 भी कर सकते हैं। 15 की टेबल में ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे? देखो, अब 5 लोगे तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाएगी। 15 देखो 10 में तो नहीं आ रहा, बिकॉज ये दोनों के पीछे 5 5 है। तो अगर मैं 15 लूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 15 2 30, 15 4 60, नहीं कुछ तो, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको 15 से ले सकते हैं, सबकी टेबल आप 15 तक कर लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। 15 3 45, 15 2 30, ठीक है, 15 4 60, 15 5 75, एंड 15 6 ओके। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, आप टेबल्स भी लिख सकते हैं। आई वॉज राइटिंग द टेबल, मेरा पेन थोड़ा सा बीच में हो गया था, तो दैट आई इरेज दैट। ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हैंग हो जाता है कभी कभी डिजिटल पेन के लिए, आई कांट से एनीथिंग। ओके, सो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब बहुत इजी हो गया। अब आप इसको 5 से भी कर सकते थे, बट 5 से करते हो तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बिग नंबर्स आ जाते हैं। तो डिपेंड, आप 5 10 15 इनके टेबल्स आप देख लीजिए, ये सारे नंबर्स 15 की टेबल में इजीली आते हैं। तो आई कैन द की एज अ 15 बुक्स। वन ट्राइंगल का मतलब कितना है, 15 बुक्स। ये आपकी की बन गई। नाउ आप इजीली यहाँ पे 5 टाइमर्स बना लीजिए, 15 5 75, यहाँ पे 3 बना दीजिए, 15 3 45। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, so this is, they have represented a circle, that's fine, they have represented a circle, that's not a issue। आप triangle, circle, square, star कुछ भी ले सकते हैं, it's your wish। ठीक है, चलिए, now let's do one more question। The students of the number of students in 7 different classes is given below, represent this data on the pictograph। okay, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना। अगेन 60 है, 45 है, 40 है, 55। तो अगेन देखिए यहाँ पे अब हम 15 का टेबल तो नहीं ले सकते, वाई, 40 आ रहा है ना, 70 भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 ही कंसिडर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 लेके और आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 5 ले लीजिए, 5 की टेबल में देख लीजिए कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये सब आपको 5 की टेबल में करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 5 जा 60, 5 9 जा 45। ठीक है, 5 की टेबल पढ़नी है। 5 8 जा 40, 5 11 जा 45, 5 15 जा 65। ठीक है, 5 ये मुझे ऐसे ये चल रहा है कि इज इट वर्किंग, आई मीन मुझे ये डिले 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 लग रहा है। ओके, जस्ट टेल मी दैट इज इट वर्किंग और नॉट। ऐसा लग रहा है कि मुझे लैग आ रहा है बीच बीच में। ठीक है, तो आप इसको कर दिए, देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ और ये लिखने में भी मेरे को ऐसा लैग हो रहा है। ओके, सो मे बी इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आगे कर लीजिए। आई थिंक ये देखो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, फिर यहाँ पे 70 है। ठीक है, okay, just give me 1 minute, let me check this, is it working or not? Okay. Is it hanging? Just give me 1 minute, just let me reset it. Okay, now I hope ये देखिए। Okay, now let me reset it. Okay, now I think it is working properly. ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे 15 तो आई थिंक हमने गलती दिया है, 13 टाइम्स आ जाएगा, अगेन ये 12 टाइम्स आ जाएगा और अगेन ये 14 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, आपको 5 की टेबल पढ़नी है, दैट्स इट। मैं कहीं पे 5 और कहीं पे 15 हो रहा था। ठीक है, ओके, सो आप कर सकते हैं इजीली इसको। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। आपको 5 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, नाउ डू दिस। Ram is a batsman given below the data of his total score in the first 5 years. Represent this data through the telemark and through the pictograph. Now they are saying that with the telemark. Okay, with the telemark, I will not ask you to do this because 1250 is, I mean, big score. You can't make 1250 telemarks, right? But I will ask you to do this with the help of pictograph. ठीक है, पिक्टोग्राफ इसके लिए इजी रहेगा। आप देखिए यहीं पर बात आती है, अगर इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी यूजिंग टेलीमार्क। अब टेलीमार्क करेंगे तो फिर इतने सारे टेलीमार्क्स आप कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे आप टेलीमार्क को अवॉइड करके आप सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोग्राफ में। ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हम इसको डायरेक्टली पिक्टोग्राफ में करेंगे। ठीक है, अब पिक्टोग्राफ के लिए वी हैव टू चूज अ स्केल। अब स्केल आप 5 तो ले नहीं सकते, 5 तो बहुत छोटा नंबर है, तो कुछ बड़ा नंबर सोचिए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 500 ले लूँ, इफ आई टेक 500, तो ये 500 से डिविजिबल है, ये 500 से डिविजिबल है प्रॉपर, ये 500 से डिविजिबल है प्रॉपर, बट इसमें फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा और इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो व्हाट I will take one symbol, that let me take this time as circle. One symbol will be equal to 250 runs. ये मैंने symbol ले लिया और इसमें I am taking that one symbol is equal to 250 runs. Okay, now that's fine. अब आप इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, आप इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स आ जाएगा, आप इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। 25 की टेबल पढ़नी है, दैट्स इट। इसको आप करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा और इसको आप करेंगे तो ये 25 5 125, तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, इजी हो गया ना। अब आप इसको 100 से भी कर सकते थे, आई एम नॉट सेइंग आपको 100 से नहीं कर सकते, बट फिर थोड़ा सा आप फंस जाएंगे। तो जस्ट रिमेंबर टू टेक अ सिंगल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय। ठीक है, वो पूरा पूरा डिविजिबल हो, उसमें कोई रिमाइंडर ना आए नीचे। ठीक है, तो वो आप 4 और 5 क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा की लेना है, कौन सा नंबर एज अ की लेना है। ठीक है, 500, आई एम नॉट सेइंग आप 100 नहीं ले सकते, आप 500 नहीं ले सकते। इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन, अगर आप हाफ कर सकते हैं दैट्स फाइन,
अगर आप हाफ करना जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे 250 लीजिए। और रिमेंबर, इसके लिए आप 25 की टेबल लर्न कर लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द 25 टेबल, राइट। लेट मी टेल यू, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ देखिए, आपने 25 बोला, 25 के बाद आया 50, 50 के बाद आया 75, 75 के बाद आया 100, बस यही रिपीट होता रहता है। फिर आता है 125, फिर आता है 150, फिर आता है 175, फिर आता है 200, फिर से रिपीट कर दो, फिर आता है 225, फिर आता है 250, और फिर आता है 275, फिर आ जाता है 300। तो इट मीन्स ज्यादा 25 की टेबल होती है वो 4 में रिपीट होती है। दैट्स इट। 100, 200, 300, 400, तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स आ गया, यहाँ पे ये 8 टाइम्स आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 8 टाइम्स आ गया, और यहाँ पे कितने टाइम्स आ गया? यहाँ पे आ गया आपका ओके। अब 250 का चल रहा था तो बस एक एक्स्ट्रा जीरो लग जाएगा। थोड़ा सा आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आई होप इट इज इजी। ठीक है, तो 25 का टेबल याद रखने के लिए ये बेस्ट तरीका है। 25, 50, 75, 100 लिख दीजिए, और उसके आगे उसके नीचे 1, 1, 2, 2 लगाते जाइए। 100, 100 अपने आप आता रहेगा। ओके, आई थिंक दैट इज इजी। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज बार ग्राफ। ये देखो ना, व्हाट इज बार? चॉकलेट बार। चॉकलेट बार कैसी होती है? ऐसी होती है ना। ये पर्क की होती है, डेयरी मिल्क की थोड़ी सी ऐसी होती है, पर्क की थोड़ी ऐसी होती है, और बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। ठीक है, तो ये बार है। तो बार से आप याद रखिए चॉकलेट बार। ठीक है, आइसक्रीम में भी आप चॉकलेट बार खाते हैं, राइट। सो बार से आपको याद रखना है चॉकलेट बार। तो यहाँ पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स का यूज करेंगे। दैट विल कॉल टू बी द बार ग्राफ। वेरी सिंपल। वहां पे हमने पिक्चर्स को यूज किया था, दैट वाज पिक्टोग्राफ। यहाँ पे हम बार यूज कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम टू द बार ग्राफ। सो देयर वी विल बी यूजिंग बार। एंड कैसे बार्स होंगे? रेक्टेंगल बार्स। रेक्टेंगल ही होती है ना चॉकलेट्स। These bars are uniform, very important। ये सारे बार्स इक्वल होंगे, मीन यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे। मतलब एक बार ऐसे छोटा सा पतला सा बना दिया, एक बार बहुत फैटी फैटी बना दिया। नो, थिन और फैट नहीं बनाना है, सबको इक्वल साइज का बनाना है। ठीक है, तो चलिए, द लेंथ ऑफ द ईच बार रिप्रेजेंट अ वैल्यू। चलो मैं बताती हूँ। ये देखो, मैंने बोला ओके, सॉरी 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 सॉरी, लेट मी टेक दिस। ठीक है, ये एक लाइन ले लेते हैं। चलो, मैंने बोला इसमें बार्स हैं, तो मैंने बोला ये एक बार है, ये एक बार है। ठीक है, टच करके बनाना है। तो इन सब की पहला कंडीशन क्या है कि इन सब की जो विड्थ होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप कॉपी में बनाएंगे। ये देखिए, तो इसमें क्या दिख रहा है? लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू। लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वैल्यू। सबसे बड़ी लेंथ किसकी है? इसकी। तो ये हमें सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा, ये हमें सबसे छोटी वैल्यू बताएगा। Okay, so basically the bar graph represent a value that is called the length, and in addition bars can be vertical or horizontal. It's not like that कि बार को आप ऊपर ही बना सकते हैं, बार को आप ऐसे में भी बना सकते हैं। You can make the bars like this also, this also, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। It's not like that कि वो सिर्फ वर्टिकली बनेंगे, हॉरिजॉन्टल भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now suppose this is a column bar graph। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? दिस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग अ सिनेमा हॉल ऑन द ऑल द 7 डेज ऑफ द वीक। सो हम क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा कौन से डे पे विजिट करते हैं सिनेमा हॉल? फ्राइडे पे। एज यू कैन सी फ्राइडे। तो फ्राइडे में कितने लोग जाते हैं? तो ये फ्राइडे में कितने लोग जाते हैं? 10। सैटरडे में कितने जाते हैं? ये सैटरडे का बार ग्राफ है ना, इसको नीचे ले आइए, 8। मंडे को सबसे कम लोग जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं। तो ये देखिए 3। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से हम रीड करते हैं बेसिकली बार ग्राफ को। चलिए, इसको भी देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आप क्या करेंगे? मैंने आपको बोला लाइंस आप रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जा रहा है 4000 के, 4000 थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये वाला जा रहा है 3200 पे, ये वाला जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ को रीड करना है। जहां पे ये बार ग्राफ का, जहां पे ये बार का टॉप है, उसको आप यहाँ पे मिला दीजिए, और फिर यहाँ से आप रीड करिए। ये होता है रीड करना बार ग्राफ को। और जब आप
आपके पास डेटा गिवन होता है उससे आप बार ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। मीन्स आपको एक एल शेप बनाना पड़ता है, एल शेप ऐसे, ठीक है। बेसिकली ये एल शेप नहीं, ये बेसिकली होता है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आप इसको डिटेल में बहुत नेक्स्ट क्लास में जाके या हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, बट आपको याद रखना है कि एल शेप है, ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस, एल शेप, ठीक है। एल शेप बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है। अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपना नंबर्स, न्यूमेरिकल फॉर्म, और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, स्टेप 1, ऑब्जर्व योर कलेक्ट डाटा। कलेक्टेड डाटा, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है आप उसको ऑब्जर्व करिए। फर्स्ट लेबल द एक्स एक्सिस विद द कैटेगरीज। तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, रिमेंबर गाइस, एक्स एक्सिस का मतलब होता है ये वाली लाइन, ठीक है, और y एक्सिस का मतलब होता है ऊपर। तो x will go like this, y will go like this. You have to remember. हमें पहले, अच्छा ठीक है, how we can remember this? अभी आपको अगर छत पे जाना है तो आप पहले ऐसे जाएंगे, फिर आप ऐसे ऐसे जाएंगे। तो पहले आप कॉरिडोर में जाएंगे, देन आप सीढ़ियों में जाएंगे। तो पहले x आता है तो पहले आप कॉरिडोर में जाएंगे, यस, देन आप सीढ़ियां चढ़ेंगे। ओके, सो ये आप देन आप करेंगे। तो इस वे से भी आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन हैव योर ओन वे ऑफ लर्निंग व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज वाई एक्सिस। ओके, वेरी सिंपल। ओके, चलिए, वाई एक्सिस को भी लेबल करना है, लेट मी टेल यू हाउ। चलिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यूनिट सब बताती हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए, 57, 32, 26, 30 and 5, these are the number of pupils, total number of people were for 150, and these are the number of pupils and they like to watch comedy movie, romantic movies, sci-fi, thrillers and horror movies. Okay, so these are the movies that these particular persons like to watch in a particular day or weekend, you can say. Okay, now I have to represent this on the bar graph. I have to represent this on the bar graph. So this is basically the bar graph. Now let me tell you that how we can make this step by step. I will be telling you how we can make this step by step. ठीक है, so the very first I told you that we have to take a axis. So what we have to do, we have to take a axis. This is what, x axis, and this is y axis. I am making with you, you have to make with me साथ साथ। ओके, अगर आप सिर्फ देखेंगे, अगर कॉपी में नोट नहीं करेंगे, मेरे साथ साथ नहीं करेंगे, तो कभी भी लर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट मी टू, आपको समझ में आए, मैम जो पढ़ा रही हैं वो सबको समझ में आए, तो आपको भी मेरे साथ बनाना है। दैट्स वाई मैं आपको दिखा भी सकती हूँ ना, बट मैम आपके साथ बना रही है सो दैट आप भी मेरे साथ बनाए, ठीक है। तो व्हाट आर दे सेइंग, जो मूवीज हैं तो मूवीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, हम बार्स बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें डेटा को रिप्रेजेंट, ये जो नंबर्स दिए हैं ये रिप्रेजेंट करना है। अब अगेन हियर यू हैव टू चूज अ स्केल। अब अगर यहाँ से आप 1 2 3 4 5 जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ओके, पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू टेक, आपको क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ स्केल, ठीक है। तो स्केल किसका ले लें, 5 का ले लें, 5 का स्केल लेना इजी रहेगा। तो चलो 5 का स्केल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल से मेजरमेंट करना है। आपका टॉप लास्ट है 57, तो 57 जाएगा 60 पे, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, लेट्स टेक इट 55 55 और 60। तो इसको लिख भी दीजिए, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 5, लेट मी डीबोल्ड इट, 10 15 20 25 20 30 35 40 45 50 55 एंड 60। आपको प्रॉपर तरीके से कॉपी में बनाना है, मेरे पास थोड़ा सा कम स्पेस है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग लाइक दिस। नाउ ये बन गया। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे आप ऐसे स्लाइड करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पे आपने लिखा 1 स्केल इज इक्वल टू 5 पीपल। इट मीन्स दैट ये जो 1 स्केल है आपका, इसका मतलब है 5 पीपल, ये आपने की डिफाइन कर दिया।
ठीक है, या थोड़ा सा आप इसको नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अभी लिखेंगे, यहाँ पे आप इसके नीचे लिख दीजिए 1 स्केल, और आप यहाँ पे 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 पीपल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। सबसे पहला है हमारे पास कॉमेडी। तो कॉमेडी 57 है, तो देखो कॉमेडी का हमारा जाएगा 57 पे। तो 57 कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है अराउंड। तो 57 का हम बनाएंगे ऐसे, ये अराउंड 57 हो गया। आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। नाउ रोमांटिक इज 32। तो 32 कहाँ का आएगा, 31 से, 30 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आपने यहाँ पे बना दिया रोमांटिक का 32। ठीक है, फिर आपने बनाया साइफाई 26। तो 26 25 यहाँ पर है, तो 25 के थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा आपका। नाउ थ्रिलर 30, तो इट विल बी एग्जैक्टली 30। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल अवेलेबल है, मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, आपको इसको रूलर से बनाना है। नाउ हॉरर वर्स 5, हॉरर बहुत कम है, तो हॉरर वर्स 5, ये देखिए 5 बन गया आपका बार का रेडी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कॉमेडी, क्योंकि ये कॉमेडी वाले का था। अब देखो कॉमेडी वाले का 57 है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ना 57 है। नाउ नेक्स्ट था रोमांटिक। रोमांटिक वाले का देखो मैंने इस तरीके से बनाया था, मुझे पता था ये, देखो यहाँ पे 32। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्केल प्रॉपर तरीके से लेना। साइफाई लिख दीजिए, मतलब आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए थ्रिलर, और यहाँ पे आप लिख दीजिए हॉरर। तो ये बन गया आपका बार ग्राफ, सो सिंपल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे चूज करना स्केल। स्केल चूज करना हम ऑलरेडी पिक्टोग्राफ में सीख चुके हैं। स्केल चूज करिए, जो भी आपने स्केल चूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पर्टिकुलर को लीजिए और उस नंबर्स के अकॉर्डिंग 57 था, तो ऑब्वियसली ये 55 और 60 के बीच में आएगा। 57 थोड़ा 55 के पास है, तो मैंने 55 के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर दिया और मैंने अपना ग्राफ बना दिया। ये देखिए, इन्होंने 10 का स्केल किया था, बिकॉज 10 का स्केल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको फिर हाफ हाफ करना पड़ता बहुत सारी। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 बनाया, तो 5 की वैल्यूज को हमने 10 का हाफ लिया है, तो वो आपको करना पड़ता। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू अबाउट दिस। आप जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, ठीक है, देखो 57 था तो 57, अब 50, यहाँ पे 35 था ना, 32 था, तो देखो अराउंड यहाँ पर आया। यहाँ पे 26 था तो अराउंड यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ पे ये 30 था तो ये अराउंड यहाँ पे आया। ठीक है, तो आप या तो 10 का स्केल ले सकते हैं या 5 का स्केल ले सकते हैं, इट रियली डिपेंड्स। अब इसका भी बायोग्राफ बनाना है। फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो 11 साइंस, यहाँ पे मूवीज जनरेट हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। मैथ्स इतने लोगों को पसंद है, सोशल साइंस, अगेन यू हैव टू मेक अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप अगेन एक चूज कर लीजिए स्केल। स्केल चूज करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू तो आप 5 का स्केल करेंगे तो आप बहुत इजीली बना पाएंगे ना, क्योंकि 21 भी है, राइट। आप 10 का भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। आप 10 का कर लीजिए तो बन जाएगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो ये जो वैल्यू है 21 वो अराउंड 20 के पास आ जाएगी। 30 वाला तो 30 पे रहेगा। चलो एक बारी मैं इसको आपको यहां से बना के दिखा देती हूँ, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके गाइज, ये आपने बनाई अपनी y एक्सिस, ये आपने बनाई अपनी x एक्सिस। यहाँ पे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं। आई एम नॉट राइटिंग द सब्जेक्ट्स, यू विल डू इट योरसेल्फ। मैं आपको सिर्फ यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ। तो आप अगर 10 लेंगे, यहाँ से आपने 10 ले लिया, फिर आपने 20 ले लिया, फिर आपने 30 ले लिया, फिर आपने 40 ले लिया। आपको याद रखना है इन सब के बीच में 10 का स्केल है। तो सबसे पहला था 11, तो 11 कहाँ से आएगा, बिल्कुल इसके यहाँ पे आएगा 11। तो आपको यहाँ से एक ग्राफ बनाना है, बार बनाना है, ग्राफ नहीं बार बनाना है। नेक्स्ट वाज 37, तो 37 ये सेंटर पे 35 होगा, सेंटर पे 35, तो 35 36 37, तो अराउंड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आपको दूसरा बार बनाना है। चलो मैं बार भी बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बार आया, ये आपका सेकेंड बार आया। ठीक है, अराउंड 37। नाउ नेक्स्ट वाज 26, तो 26 अराउंड देखो यहाँ पे 30 और 20 के बीच का जो सेंटर पॉइंट है दैट विल बी 25, और 25 से थोड़ा सा ऊपर आपका चला जाएगा 26। नाउ 30 भी एज इट इज है, 30 को तो आप एज इट इज कर सकते हैं। नाउ 21, तो 20 से ऊपर थोड़ा सा आपका आ जाएगा 21, बन गया।
अब सब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन विच इज द मोस्ट फेवरेट, तो मोस्ट फेवरेट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसमें है, आप बार ग्राफ में देख सकते हैं, जो बार सबसे ऊपर जा रहा है उसमें वैसे भी 37 दिख रहा है, राइट। लीस्ट फेवरेट, अब इस वर्ड पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लीस्ट मतलब मिनिमम, मोस्ट मतलब मैक्सिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम। सो मिनिमम एज यू कैन सी हियर, जिसका सबसे कम डेटा है दैट इज हिंदी। ओ, हिंदी बच्चों को पसंद नहीं है ऐसा? आई डोंट थिंक सो। हिंदी तो स्कोरिंग होता है, हिंदी तो सबको पसंद होता है, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस डेटा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यस, तो टोटल कर दीजिए, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ओके, so you have to total it and you have to give me the correct answer. Okay, so similarly you can solve this question with the help of this data. आपको ये डेटा दिया हुआ है, अगेन अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यहाँ पे स्कूल सॉरी आपको यहाँ पे स्केल चूज करना है, तो आप किसका चूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। देखो ऑल द नंबर्स, अब आई कैन सी ये सारे नंबर्स 15 की टेबल में भी नहीं आते हैं, राइट, 80 नहीं आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी चूज, ये जो स्केल है इसको चूज नहीं कर सकते, तो आप कोई भी ले लीजिए, आप 20 का ले लीजिए, 20 देन 40 देन 60 देन 80, ठीक है, वो भी आपकी हेल्प करेगा। या आप 10 का ले लीजिए, 10 का लेंगे तो आपको 13 बनाने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट में 135 है, तो बेटर आप 20 का ले लीजिए। तो आप 20 का लेंगे तो आपका स्केल ऐसे बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 20 के बाद आपका पहले 0 आ जाएगा, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, तो ये आपकी हेल्प कर लेगा क्योंकि 80 और 100 के बीच में 95 आ जाएगा, तो वो आप अंदाजे से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, 100 तो आ ही रहा है इसमें, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, 100 आ रहा है, ये तो आप बना सकते हैं। 80 और 90 के बीच वाला जो होगा वो 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 से थोड़ा ज्यादा आप 95 बना दीजिएगा, 120 तो आ ही रहा है, 140 आएगा, उसके बीच में आप 135, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर ग्राफ से शो कर सकती हूँ, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ओके, ये आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे टू बार ग्राफ साथ बनाने, तो आप बना सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। मैं आपको स्केल नहीं बता रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप स्केल का खुद कर सकते हैं, राइट। ये आपने बनाया, ये आपने बनाया। तो वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, तो वॉचिंग का सपोज मैंने यहाँ पर बनाया, अभी यहाँ पे 1240 है, यहाँ पे 620 है, तो आपको स्केल चूज करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप 500 का या आप 250 का स्केल भी ले सकते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि सब अराउंड कहीं ना कहीं उसी पे आते हैं, ठीक है। सपोज आपने 250 का स्केल चूज कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0 to 250, देन 500, देन क्योंकि स्केल हमेशा इक्वल होना चाहिए, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 750, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे 1000, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे 1250, ठीक है। तो देखिए वॉचिंग का हम, अब देखो यहाँ पे, अब मैं एक छोटा सा काम कर रही हूँ, देखिए मैंने पिंक जो मैं बॉक्स बनाऊंगी वो वॉचिंग का होगा, और जो ग्रीन बॉक्स बनाऊंगी मैं वो पार्टिसिपेटिंग का होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो पिंक वाला है वो वॉचिंग का है, और जो ग्रीन वाला है वो पार्टिसिपेटिंग का है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, साथ साथ बनाने, ये ग्राफिक कंपैरिजन ग्राफ है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले पिंक लेना है। पिंक किसका है, क्रिकेट का, किसका, वॉचिंग का। तो वॉचिंग कितने कितने बच्चों को पसंद है, 1240, तो ये 1240 का मेरा ग्राफ बन गया। नाउ सिमिलरली सेम क्रिकेट में ही पार्टिसिपेटिंग कितने लोग कर रहे हैं, 620, तो उसके लिए मुझे ग्रीन लेना पड़ेगा, राइट। तो ग्रीन 620 अराउंड यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो 500 और 760 के बीच में लगभग 600 यहाँ पर आएगा, और उससे थोड़ा सा ऊपर तो 620। तो मैं इन दोनों बार ग्राफ को ऐसे बनाऊंगी, तो यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है कि लगभग अराउंड जितने लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, उससे ज्यादा, उससे डबल लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आई मीन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग एंड वॉचिंग। देखता है ना, क्रिकेट तो हर कोई देखता है घर में, तो मोस्ट ऑफ द खेलना कम लोगों को पसंद है, देखना ज्यादा लोगों को पसंद है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये हमारा किसका बन गया, ये बन गया हमारा क्रिकेट का। नाउ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल का अगेन हम
वॉचिंग किससे बनाएंगे? पिंक से। तो वॉचिंग के लिए हमें पिंक लेना पड़ेगा 470, अराउंड 470, 250 और 500 के बीच में आएगा, 500 से थोड़ा सा नीचे आएगा 470, तो मैंने ये बना दिया 470। ये देखिए, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाउ 320 फॉर पार्टिसिपेटिंग, सो 320 फॉर पार्टिसिपेटिंग, तो 320 थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 250 से थोड़ा ऊपर। बन गया। ये किसका बन गया? बास्केटबॉल का। तो बास्केटबॉल में कम डिफरेंस है, मतलब मोस्टली लोग देखते भी हैं और खेलते भी हैं, सिर्फ थोड़ा सा कम डिफरेंस है। क्लियर? तो ऐसे ही करके आप और का बना देंगे। तो यहाँ पे हम 2 बार ग्राफ साथ में बना रहे हैं, और जब भी हम 2 बार ग्राफ साथ में बनाते हैं वहां पे हम करते हैं कंपेयर। हम क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो क्विज टाइम है, जल्दी से क्विज देख लेते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, सो सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स। देखिए, सारे क्वेश्चंस पॉज करके मैम के साथ करिएगा, देन आपको मजा आएगा। सिर्फ देख के यू विल नॉट गेट एनीथिंग। Okay, so I hope it's time to go. Thank you is also going, so it's time to go now. I hope you like the session. If it is like so, you can like it, subscribe it, press the bell icon so that you will never miss any update. Okay, so I hope you all are enjoying watching this. You can comment me your suggestion, your queries. Till to the next session, which will be soon. Bye bye, take care.